Yeah, so we are live now. Good morning to all. I am Siddharth Inga, your host, and welcome in today's Sustainable Saturday session. So today we have Mr. Abhishek Anand with us. Abhishek has a master degree in forestry management from Indian Institute of Forest Management, Bhopal, and he is very curious about the conservation of forest, plantation of native trees. So अभी तक हमने कार्बन पे बहुत सारे सेशन लिए कि what is a carbon emission and what is the different types of greenhouse gases and other aspects. So आज Abhishek will talk on carbon sequestration methodologies कि what type of methodologies are there in which we can do the carbon sequestration. So it will be really interesting topic क्योंकि emission करना तो हम सब जानते हैं और emission किस तरह से हो रहा है ये भी हमें पता है, but how we can sequester that carbon, that is a very interesting thing. So Abhishek, over to you. Please start your presentation. Thank you, sir, for your kind introduction. Hello, everyone. I'm Abhishek. Today, I will be discussing about carbon sequestration methods. So, starting with carbon. Carbon is the fourth most abundant element found in the universe after hydrogen, helium, oxygen. In air, it is present as carbon dioxide. It is present in 0.04% of total air. तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ की हीट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसे बाहर जाने से रोकता है. बट सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड significantly from 280 parts per million to more than 400 parts per million, which is a sharp increase of 47%. So अगर ये हम लोग रोकें नहीं तो it will increase more in the future, and we can see the effects of a higher carbon concentration in the atmosphere, which is leading to global warming and climate change. So today we'll be looking about how to sequester carbon. Sequestering carbon means simply capturing carbon dioxide from the air and storing it somewhere. So उसके 3 methods होते हैं: biological, geological और technological. तो biological में forest आते हैं, soil आते हैं, ocean आते हैं. In geological, it contains carbon capture and storage. In the technological, there are two processes: graphene production and direct air capture, which is DAC. तो स्टार्टिंग विथ बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल वो मेथड है जो नेचुरली कार्बन को सिक्वेस्टर करता है. इसमें फॉरेस्ट, सॉइल और ओशन आते हैं. तो फॉरेस्ट हमारे लैंड सरफेस का 31% कवर करता है, और वो सिंस स्कूल डेज वी नो हाउ ट्रीज प्लांट्स कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो कार्बन अपने पूरे बॉडी में स्टोर करते हैं फ्रॉम रूट टू द शूट्स. तो अगर हम इसे काटे तो जितनी भी कार्बन इन्होंने स्टोर किया है वो ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, एंड इट ओनली नॉट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बट आल्सो threatens the biodiversity present in that ecosystem. So we need to conserve forest and plant more trees to sequester carbon. Actually forest ये अर्थ का लंग्स हम ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट को कहते हैं. And for here in Mumbai, the Sanjay Gandhi National Park is the lung of the city. Coming to the soil thing, soil कार्बन को दो तरह से स्टोर करता है, एक ऑर्गेनिक मैटर में और सेकेंड वन इज एज इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स. तो ऑर्गेनिक मैटर वो है जैसे कि एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यूज, डेड एंड डिकम्पोजिंग पार्ट्स ऑफ लीफ लिटर्स. और इनऑर्गेनिक जब कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉइल के मिनरल से मिक्स होता है तो वो कार्बोनेट्स फॉर्म करता है. एंड कार्बोनेट्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग कार्बन अप टू द 70,000 years इन सम केसेस. ऑर्गेनिक कार्बन आपको मैक्सिमम ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, मैंग्रोव से पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट वी कम टू द ओशन. Ocean, we know it covers largest part of the earth, around 70%, जिसमें से 95% ओशन होते हैं. So it is the largest carbon sink of the earth. कार्बन दो तरीके से ये कार्बन को ये sequester करता है.
एक फर्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी पंप, सेकंड होता है बायोलॉजिकल पंप। सॉल्युबिलिटी पंप जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन ये सी वाटर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, उसे हम सॉल्युबिलिटी पंप कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल पंप, जो भी टाइनी मरीन प्लांट्स होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, तो उसे बायोलॉजिकल पंप में कंसिडर किया जाता है। ये तीन फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक कार्बन और कार्बोनेट सेडिमेंट्स में। लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की। अगर ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करने लगे तो इनकी पीएच लेवल डिक्रीज होने लगती है, लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन। जिसकी जैसे ऑयस्टर्स पाए जाते हैं, स्नेल्स होते हैं, उसके शेल्स इन द लॉन्ग टर्म वो डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ये सब जो स्पीसीज है वो फूड होते हैं बड़े ये स्पीसीज के, तो दिस डिस्टर्ब द होल फूड वेब ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम। So it is more essential to sequester carbon from the atmosphere. So now we come to the geological theme, which is carbon capture and storage. Actually एक टेक्नोलॉजी है जो बड़े इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, लाइक जो स्टील, आयरन, ऑयल एंड गैस कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज यूज करती है टू सेक्वेस्टर देयर कार्बन। सो इनका तीन प्रोसेस होता है, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। फर्स्ट वो कार्बन को इनका जो कन्वर्शन प्रोसेस होता है, तो उससे जो कार्बन रिलीज होता है वो पॉइंट सोर्स पे उनको कैप्चर किया जाता है, फिर इसे कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है विया पाइपलाइंस या रोडवेज या शिपवेज, देन उसे इन द डीप रॉक्स अप टू 1 किलोमीटर से इंजेक्ट किया जाता है सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड देयर परमानेंटली। Actually, right now we have around 35 sites of carbon capture and storage, which are mostly present in US, Canada, Norway. इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है, बट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज ड्राफ्टेड अ प्लान बाय 2030 टू implement it and scale it further for oil and gas companies. So now we come to the technological part, graphene production and direct air capture, which is DAC. ग्राफीन प्रोडक्शन ये न्यू टेक्नोलॉजी है टू कैप्चर कार्बन। एक्चुअली ग्राफीन एक ये कार्बन का एलोट्रॉप है जो 2 डायमेंशनल में कार्बन हेक्सागोनल लैटिस में ये अरेंज रहता है, विच ये ग्राफीन कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मोस्टली ये आपका टेक्नोलॉजिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होता है। इसे दो तरह से यूज किया जा सकता है, एज अ लेयर और एज अ कैटलिस्ट। एक्चुअली इसमें अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, सो एंड इट्स आल्सो एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो वी विल सी कि इन फ्यूचर क्या इसका ये यूज होता है। अब हम ये डैक पर आते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर। ये डायरेक्टली एयर को कैप्चर करता है थ्रू देयर फैंस, फिर एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अब्सॉर्ब किया जाता है एज अ कार्बोनेट सॉल्ट, फिर उसे पैलेट्स में बना के उसे हीट किया जाता है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अदर यूज और टू स्टोर इट फर्दर इनटू द रॉक फॉर्मेशंस। राइट नाउ अभी हमारे पास अराउंड 18 फैसिलिटीज है डैक के, जो यूरोप, अमेरिकन, कनाडा में है। इन 2021 क्लाइमवर्क्स ओरका हैज ओपनड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैक फैसिलिटी इन आइसलैंड, जो कैपेबल है अराउंड 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करने को पर ईयर एनुअली। सो ये भी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्चुअली 1 टन कार्बन सिक्वेस्टर करने के लिए अराउंड $250 to $600 इसमें यूज किया जा सकता है, अनलाइक इन रिफॉरेस्टेशन विच ओनली जिसमें सिर्फ $50 खर्च होते हैं टू सिक्वेस्टर 1 टन ऑफ कार्बन। तो वी विल सी इफ इट कैन बी स्केलेबल टू अदर places and see its impact in the future. So now we come to the why carbon sequestration is essential. First of all, as the carbon dioxide increasing, the heat is also increasing. The global heat is also increasing.
अगर हम लोग sequester नहीं करेंगे तो we are actually now seeing the various in parts of the world that extreme weather events हो रहे हैं या forest fire हो रहा है, तो ये first point है. Second is ecosystem restoration. By simply planting more trees, मतलब हम लोग कार्बन sequester भी नहीं करते, we also preserve the biodiversity of that area. And the third point is sustainable transition to renewables. मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल को भी कम करना होगा. तो वी नीड टू हैव सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जो हमें रिन्यूएबल से मिलेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ये बायोमास एनर्जी. वी हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. सो थैंक यू sir and Green Yadar for providing me this opportunity. I'm very grateful to share my knowledge about carbon sequestration, and I'm looking forward to more sessions like this in future. Thank you, sir. Thank you Abhishek for presenting your knowledge in the form of PPT, and बहुत ही अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया है कि क्या टाइप के मेथोडोलॉजी होते हैं और कैसा होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि जो सबको समझ में है. तो अभिषेक, मुझे लगता है कि जो आपने 3 मेथोडोलॉजीज बताया, बायोलॉजिकल वे, जियोलॉजिकल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड डायरेक्ट एयर कैप्चर, तो इसमें से द बेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथोडोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी. यस सर. हाउ फॉरेस्ट आता है, सॉइल आता है, ओशन आता है. yes, क्योंकि जब हम जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात करते हैं, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है. yes, मुझे लगता है कि इंडिया में इतने एक्सपेंसिव प्लांट लगाना शायद अभी फिजिबल नहीं होगा, या फिर इतना कॉस्ट उस पर स्पेंड करना शायद ठीक नहीं होगा. बट ये बायोलॉजिकल मेथड अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, तो क्या होता है, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जो आपने बताया कि कनाडा और बाकी कंट्रीज में ये डायरेक्ट एयर कैप्चर किया जा रहा है या फिर जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनके पास लैंड की कमी है, लैंड उतनी नहीं होती है. बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सी ऐसी लैंड है कि जो डिग्रेडेड है. और उस लैंड पे हम टी प्लांटेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्लांटेशन कर सकते हैं, इवन हम मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट वे टू सिक्वेस्टर ऑफ कार्बन. एंड इसमें क्या होता है ना कि इसमें ड्यूअल बेनिफिट है. जब हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो एक तो वो इकोनॉमिकली बहुत ही वायबल होता है, बहुत सस्ते में हो जाता है एज कंपेयर टू दिस टू मेथड. एंड सेकंड, इससे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी होता है. देखिए, अगर एक चीज में अगर हमें 2-3 फायदे हो रहे हैं तो मुझे लगता है वो अच्छा है. अगर हम जियोलॉजिकल वे से जाएं तो इसमें कोई बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन का, कंजर्वेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं थ्रू जियोलॉजिकल, और उसको जमीन में कहीं एक लेयर के नीचे हम उसको ये कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. डायरेक्ट एयर कैप्चर में भी अगर हम यूज करें तो बस वही हो रहा है कि इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, बट वो कितने अमाउंट में हो रहा है वो थोड़ा डाउटफुल है. बट अगर बायोलॉजिकल वे से जाए, अगर हम जंगल बनाए, प्लांट लगाए, सो इसमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, अर्बन हीट आइलैंड्स के जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो गए, एंड वी कैन कन्वर्ट द डिग्रेडेड एंड डेड लैंड इनटू द लश ग्रीन फॉरेस्ट. जैसा हमने उद्यान में किया कि टोटल जो डंपिंग यार्ड था, उस डंपिंग यार्ड को हमने लश ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथोडोलॉजी, एंड दैट फॉरेस्ट इज sequestering the carbon now. So biological way is the best as per my view. Yes sir. थैंक यू अभिषेक फॉर योर प्रेजेंटेशन. आपने बहुत ही कम समय में बहुत क्रिस्प नॉलेज दिया, बहुत ही अच्छा नॉलेज अपने व्यूअर्स को दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर.